नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर्टी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश की संस्थाओं पर थोक में कब्जा कर लिया गया है और खुफिया एजेंसियों, ईडी तथा सीबीआई को हथियार बना दिया गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी मामला नहीं है, जबकि अधिकांश राजनीतिक मामले विरोधियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भारत की चुनाव मशीनरी को बर्बाद कर दिया है। हर्टी स्कूल में पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर आयोजित संवाद में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थागत ढांचे पर थोक में कब्जा किया गया है। देश के संस्थागत ढांचे पर पूर्ण पैमाने पर हमला हो रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियां ईडी और सीबीआई को हथियार बनाया गया। ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ 0 केस हैं और अधिकांश राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ है जो उनका विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर कोई बिजनेसमैन कांग्रेस का समर्थन करता है तो उसे धमकी दी जाती है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए में फर्क बताया और कहा, मैं आपको कोट करके कर रही हूं, कि कांग्रेस ने संस्थागत ढांचे का निर्माण किया और उसे कभी अपना नहीं माना, बल्कि देश का माना। लेकिन बीजेपी इसे अपना मानती है और राजनीतिक सत्ता बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और विपक्ष इसका मुकाबला करेगा। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे, बल्कि भारत के संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। हम विरोध का एक सिस्टम बनाएंगे जो कि सफल होगा। और उन्होंने चुनावी मशीन पर भी सवाल खड़े किए हैं। आइए सुन लेते हैं एक अंश राहुल गांधी का, जो चुनावी मशीनरी के बारे में बोला है, और उसके बाद अपने खास मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। Fairness of elections in India is concerned, I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. And so they use it as a tool for building political power. Look at just look at the तो आपने सुना कि उन्होंने पूरी बात हर्टी स्कूल में क्या कही, और उसके बाद बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है वो इस समय तिलमिलाया हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर अराजकता फैलाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। किसी ने ये लिखा कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ द एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जिनको कि जॉर्ज सोरोस नाम जैसे लोग उनको फंड करते हैं। उन्होंने साथ में आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की और उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने छोटे और मध्यम उद्योगों को नष्ट कर दिया। वो सारी बातें राहुल गांधी ने अपनी जर्मनी की यात्रा में
कही हैं। अब आपको ये बता दें कि प्रदीप भंडारी ने क्या कहा है। उन्होंने जमकर राहुल गांधी पर हमला बोला और सवाल उठाया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सचमुच भारत से प्यार करता है, देश को असफल होते देखना चाहेगा। एक्स पर पोस्ट में भंडारी ने आरोप लगाया है कि गांधी अपने वैचारिक संरक्षण जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और विदेशों में जाकर उन लोगों को एकजुट कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने भारत विरोधी ताकतें बताया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस भारत की प्रगति और लोकतंत्र का विरोध करती है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी अराजकता को बढ़ावा देती है। भाजपा नेता शोभा करांडलाजे ने राहुल गांधी को भारत विरोधी नेता बताया जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने आज पत्रकारों से कहा कि ऐसा करके उन्हें क्या हासिल होगा, उनका व्यवहार अभी भी बच्चों जैसा है, नेता जैसा नहीं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी की बर्लिन यात्रा के बाद या जर्मनी के दौरे के बाद उनके खिलाफ बीजेपी कोई सख्त कदम उठाने वाली है, जैसे उनको देशद्रोही साबित करना या उनको जेल भेजना। दूसरा एक सवाल जो सबके सामने कि कौन ज्यादा बड़ा देशभक्त है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और दूसरे सवाल से आज मीनू जी मैं शुरू करूंगी कि कौन बड़ा देशभक्त है। जितनी बार राहुल गांधी विदेश जाते हैं उनको अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ता है। तो आज डिस्कस इस पर कर ही लेते हैं कि मोदी जी बड़े देशभक्त हैं या राहुल गांधी। जी, देखिए, ये जो सवाल उठाना ही बेईमानी है मेरे हिसाब से, तो कि आप राहुल गांधी को ये सवाल उठाते ही आप ये बताना चाहते हैं कि मोदी बहुत बड़े देशभक्त हैं और राहुल गांधी उससे छोटे देशभक्त हैं। देखिए, राहुल गांधी एक जिसको कहा जाता है कि विरासत में है वो देशभक्त। आप क्या बात कर रहे हैं? वो 5 पीढ़ियां गुजर गई हैं, उसमें से 2 पीढ़ियां तो देश के नाम पे उन्होंने अपना खून बहा दिया है, लिटरली खून बहाया है। बाकी के देश की आजादी में जेल गए हैं, अंग्रेजों से देश को छुड़ाने के लिए जेल गए हैं उनके पुरखे। तो वो उस एक हेरिटेज को वो इनहेरिट करते हैं, वो एक विरासत के एक स्वामी, वो एक वारिस है। तो आप उनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाएंगे कि महज इसलिए कि उन्होंने आपको कुछ एक ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस वो आपसे पूछते रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनमें सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने वाले नेता ऑफ कोर्स राहुल गांधी हैं। और उनसे बीजेपी तिलमिलाई रहती है, वो चाहती है कि हम किसी तरह से इसको चुप करा दें, लेकिन वो नहीं करा पा रहे हैं। उनकी सांसदी छीन ली तो भी नहीं चुप करा पाए, उसके बाद नेशनल हेराल्ड का केस लगाया, उसमें मुंह की खाई, वो तब भी नहीं चुप हुए हैं। और अभी और भी पता नहीं क्या है, जो आपने बताया देशद्रोह का केस। अब इसमें आई डोंट थिंक सो कि देशद्रोह तो यह है कि अगर देश की सुरक्षा को खतरे में डाला हो। मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने बात कही है उससे देश की सुरक्षा खतरे में डल जाती है। देखिए, देश की सुरक्षा की बात इसमें आती ही नहीं है। और जो राहुल गांधी ने कहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ दर्शकों को आपके, कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ये बात अपने एड्रेस में नहीं कही है। जो उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया वो तो 2 मिनट का था एड्रेस, 5 मिनट का होगा हार्डली। वहां पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा तो सबसे पहला सवाल ही यही था कि आप कर्नाटक तो जीत गए लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा क्यों हारे, कैसे हारे? तो उसका जवाब था राहुल गांधी। अब बताएं, प्रदीप भंडारी जिनका आपने जिक्र किया, या बीजेपी का जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट है, वो ये बताए कि इसका जवाब क्या देना चाहिए था राहुल गांधी को। मतलब ज्ञानेश कुमार की शान में कसीदे पढ़ने चाहिए थे या मोदी जी की शान में पढ़े कसीदे? जिस देश के लोग था, वो कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। जो कश्ती लाए हैं हमारे आजादी के परवाने दीवाने, यहाँ पे आप उसको डुबाने की तैयारी में हो रहे हैं। आप संविधान बदलना चाहते हैं, आप तो चाहते ही नहीं है। आपके यहाँ से आपके जो पालित पोषित जो एंकर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र के क्या क्या नुकसान है। मतलब देश के विकास में लोकतंत्र नुकसानदायक है। इसको मतलब वो इन अ वे एक तरह का रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए या वो ये राजतंत्र या तानाशाही होनी चाहिए। अरे देशद्रोह तो उनके ऊपर लगाइए जो आपको तानाशाह बनाना चाहते हैं। तो ये चीज जो, और रही देशभक्ति की बात, तो देशभक्ति की बात कांग्रेस के नेताओं से तो ना पूछे, कम से कम बीजेपी वाले। देश की आजादी में जिनका, मोदी जी जिस पार्टी और जो उनके पुरखे हैं आरएसएस, उन्होंने देश की आजादी में उनका कोई नखून भी नहीं कटाया। उन्होंने शहादत की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन लोगों ने उल्टे जो क्रांतिकारी थे या जो कांग्रेस के या अदर जो एक कांग्रेस के तो झंडे तले पूरा संघर्ष चल रहा था,
उनकी मुखबिरी करते थे, बताते थे कि कांग्रेसी कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कल कहाँ उनकी सभा होने वाली है, क्या उनके अंदर तैयारियां चल रही हैं। और उसमें वो बाद में बातें आई भी निकल के, अटल बिहारी वाजपेयी तक का नाम आया हुआ है उसमें। बाद में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना मिस्टेक उसमें बताते हैं माफीनामा लिख के दिया। तो ये सारी चीजें सामने आई है। आप तो कहीं थे ही नहीं, आप तो 1942 में जो आज भारत छोड़ो आंदोलन था, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस वक्त वेस्ट बंगाल में उस समय सरकार में थे, वो कह रहे थे कि इसको कुचल दिया जाना चाहिए आंदोलन को पूरी तरह। आपके नेता कहते थे द्वितीय विश्व युद्ध में कि ये अंग्रेजों का साथ दिया जाना चाहिए, अंग्रेजों का साथ दें हम आपको। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कॉल देते थे वो अपनी सेना में शामिल होने के लिए लोगों को, आप उनको मना करते थे। आज आप नेताजी के कस्टोडियन बन रहे हैं। तो आप तो देशभक्ति का लेसन ना दें, खाली झंडा फहरा देने से या वंदे मातरम के कस्टोडियन बन रहे हैं। आपने कभी गाया वंदे मातरम? आपकी जो शाखाएं होती हैं, जो संघ की शाखाएं होती हैं, जिसमें मोदी जी ताज जीवन गए हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी जी संघ के प्रचारक ही थे, तो वो रेगुलरली जाते होंगे संघ की शाखाओं में। कभी मोदी जी ने गाया वंदे मातरम वहां? जो आज वो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, जिनका कि हर सेशन जो है पार्टी का वंदे मातरम के गान से शुरू होता है। तो आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये तो ना बांटे, एटलीस्ट बीजेपी तो ना बांटे, और कांग्रेस को तो बिल्कुल भी ना बांटे कि आप देशभक्त है या नहीं है, वो बीजेपी डिसाइड करेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस देश का विपक्ष और इस देश की जनता तय करेगी कि बीजेपी देशभक्त है या नहीं है। आपको बताना पड़ेगा। आप तो ऐसे देशभक्त हैं कि विदेशों में जाके उनकी सरकारों के चुनाव में आप इंटरफेरेंस करते हैं। आप कर क्या रहे हैं देश के लिए? आपने तो उल्टा बदनामी करवा दी है देश की। आप जिस बात को राहुल गांधी वहां कह रहे हैं, ये एक तमाचा है इस देश के सरकार के मुंह पे कि आपके यहाँ नाम के लिए लोकतंत्र है कि इलेक्टोरल, मतलब कि चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव का तरीका क्या हो रहा है, उसमें किस तरह के साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या हेराफेरी हो रही है, किस तरीके से वोटर लिस्ट में आप हेराफेरी छेड़फाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप वोटों की गिनती में हेराफेरी करते हैं, कैसे आप परिणाम घोषित करने में हेराफेरी करते हैं। एक बात हो तो बताइए। इवन प्रधानमंत्री का जो चुनाव है इस बार का बनारस से, वो ही संदेह के घेरे में है इस बार। तो आप तो जो जिस तरीके से जो बात आ गई है, तो आपको क्या है कि वो सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है उस बात की। और राहुल गांधी का ये वाला हिस्सा आप उठा ले भाषण का, और उसके अलावा ना उठाएं कि राहुल गांधी ने और क्या क्या बोला है उसमें देश के लिए। तो वो चीजें आप ना उठाएं और सिलेक्टिवली वो उठा ले जिसमें कि आपको चोट पड़ती है। उस पे भारत के लिए कोई नहीं बोला है उन्होंने इस पार्टी के लिए बोला है, रूलिंग डिस्पेंसेशन के लिए बोला है। और जो सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब वही दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी उसकी बजाय कुछ फिल्मों की स्टोरी सुनाने लगते तो आप ही बोल देते कि पप्पू है, देखो सवाल तो इलेक्शन पे पूछा था और फिल्म की स्टोरी सुना रहा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको जो होता है ना, बड़े जो अनकंफर्टेबल सवाल है उनको हर कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। जी जी ठीक है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, जर्मनी का जो राहुल गांधी का दौरा है, उनकी जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं और उसको स्ट्रैटेजिकली रिलीज किया है कांग्रेस ने, और वोट चोरी की अभी बड़ी एक महारैली हुई थी 14 दिसंबर को दिल्ली में। उसके बाद वोट चोरी पर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, संस्थागत ढांचे पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी क्या बख्शेगी राहुल गांधी को, या बीजेपी की हर कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है किसी भी सूरत में? देखिए, बीजेपी के लिए काफी मुश्किल की स्थिति आई हुई है, क्योंकि सामान्य सी बात हर कोई समझता है कि किसी मंदिर में अगर पॉकेटमारी हो गई तो आप भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। पॉकेटमारी हो गई किसी मंदिर में तो मंदिर बदनाम नहीं होता है, पुलिस आती है और किसने पॉकेटमारी की उसको पकड़ती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस देश में वोट चोरी हो रही है इस बात को कहता है तो वो इस देश के बारे में नहीं बोल रहा है, वोट चोरी जो कर रहा है उसके बारे में बोल रहा है। इसीलिए यहाँ पर कोई किसी भी हालत में ये देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस तरह का तर्क साबित नहीं होता, किसी भी कारण से साबित नहीं होता। फिर भी जिस तरह से उन्होंने कहा बर्लिन में, ये बात सही है कि इस देश में आज दो अलग अलग विचारधाराएं हैं और उन दो विचारधाराओं के बीच में एक समस्या आई हुई है। और राहुल गांधी का कहना है कि हम आने वाले समय में पूरे विपक्ष इस चीज को हम समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, इस चीज को किस तरह से डील करें इसकी हम कोशिश करेंगे, जो कि आपके क्लिप में भी अभी सुनाई दिया। तो
होता यह है कि अगर हमें छोटी मोटी बीमारी हुई है, सर्दी हुई है, तो बिना डायग्नोसिस किए हुए एक टेबलेट खा लेते हैं, डोलो 650, और शायद तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी अगर समस्या थोड़ी जटिल हो गई तो आप केवल एक टेबलेट से नहीं होता है, फिर आपको थोड़ा सा उसमें डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो पूरी की पूरी समस्या है, हमें ये समझना चाहिए कि भारत में आज भले लोकतंत्र है, पर असल में भारत में तंत्र किसी भी नागरिक को, किसी भी लोग को बिना कारण गिरफ्तार कभी भी कर सकता है। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रहिएगा, आप कोई गलती नहीं किए हों, आप आराम से अपने घर में बैठे हों, लेकिन भारत के तंत्र को ये अधिकार है कि आपको बिना कारण आपके घर में आए, आपको अरेस्ट करके लेके चला जाए और अंदर रख दे। सोनम वांगचुक इसके सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। कोई कारण देने की जरूरत नहीं है, कोई भारत में तंत्र किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। तो किसी को गिरफ्तार करेगा या नहीं करेगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तंत्र के पास इतनी ताकत है। लेकिन ये चीज हमको ये भी जान लेना चाहिए कि संविधान और कानून दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। संविधान जो होता है वो नागरिकों के अधिकतम अधिकार और शासन के न्यूनतम अधिकारों का दस्तावेज होता है। उदाहरण के लिए भारत में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह संविधान सम्मत है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर कोई कानून देखिए तो कानून ऐसी चीज होती है कि जो शासन के अधिकतम अधिकार और नागरिक के न्यूनतम अधिकारों का दस्तावेज होता है। इसका मतलब संविधान और कानून में कई बार आपको एक विरोधाभास दिखेगा। उदाहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता में वो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान दिया है, उसमें काफी सारे किंतु परंतु लगा दिया गया है, काफी सारे उसमें किंतु परंतु लग गए हैं। तो इसीलिए अगर कोई तंत्र चाहे तो भारत में, आप तो क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, भारत में तंत्र किसी व्यक्ति को बिना कारण वो घर में बैठा रहे, शांति से बैठा रहे, तब भी आके गिरफ्तार कर सकता है। सोनम वांगचुक इसके सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आज तक क्या गलती की, अभी तक तंत्र ने, अभी तक शासन ने कोर्ट को यह भी नहीं बताया कि किस लिए उनको गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन महीनों से गिरफ्तार हैं। तो भारत में तंत्र के पास इतनी ताकत है क्योंकि वो करता यह है कि संविधान को बाईपास करने के लिए, संविधान जो नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, नागरिकों को जो अधिकार देता है, अधिकतम अधिकार देता है, उसकी कटौती करता है तंत्र कानून के माध्यम से। कानून ऐसा बनाता है कि संविधान से बड़ा हो जाए। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, ये तो अगर आप केवल और केवल संविधान और कानून के नजरिए से देखिए तो संविधान के अनुसार राहुल गांधी या भारत के किसी भी नागरिक को बिना कारण दिए हुए, बिना उनके कुछ किए हुए आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते, किसी को भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी को जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन कानून के अंतर्गत आप किसी को भी बिना कारण के घर बैठे हुए आदमी को आके आप घर से उठा सकते हैं। इसीलिए कानून और अधिकार के बीच में हमेशा एक टकराव होता है। हमने इस मामले में देखा, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, दो मुख्यमंत्रियों को इन्होंने गिरफ्तार किया, किसी ने किसी कानून के तहत गिरफ्तार। हाँ, सिद्धार्थ, सवाल ये है कि राहुल के खिलाफ अब ये क्या कर सकते हैं, जो कि हमेशा जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, उनके प्रवक्ता, उनके जो गोदी एंकर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टाइल है जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं। अब क्या राहुल गांधी का ये बिगाड़ सकेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे क्योंकि इनके पास खुद ये 240 की बैसाखी पर आए हुए हैं। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल मामले में साबित हो चुका है कि आप कानून के नजर में, कानून की ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी को आप गिरफ्तार भी कर लीजिए तो 6 महीने या 3 महीने के बाद संविधान, मतलब न्यायपालिका उनको संविधान के आधार पर मुक्त भी कर देती है। यही चीज राहुल गांधी के साथ इन्होंने पिछली बार भी कोशिश की थी। आपको ध्यान है कि इन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करवा दी थी किसी एक कारण, लेकिन वही न्यायपालिका ने संविधान सम्मत उस रद्द किए हुए सदस्यता को वापस दे दिया। ये उस समय की बात है जब ये 300 पार इनके पास पूरी ताकत अकेले थी। अभी तो ये खुद ही बैसाखी पर हैं। मुझे नहीं लगता कि बैसाखी पर जो होगा वो दूसरे को टंगड़ी मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं, अगर इनको राहुल गांधी की किसी बात से इतनी नाराजगी है, इनको अगर लगता है कि राहुल गांधी हर बार बाहर जाके कुछ गलत बात बोल देते हैं, तो आप राहुल गांधी का वीजा रोक सकते हैं ना, आप राहुल गांधी का पासपोर्ट जब्त करवा के रख सकते हैं, आप राहुल गांधी को इस देश से बाहर जाने से रोक सकते हैं। आपने अगर क्या कहते हैं, राहुल गांधी कोई विजय माल्या और नीरव मोदी तो नहीं है कि रातों रात भाग के चले गए। वो तो यहाँ से सबको बोल के गए हैं। वो एक लोकसभा सदस्य है, नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर हैं। आपको अगर लगता है, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास इस तरह का कानून है
कि किसी भी नागरिक को बिना कारण से जब आप रोक के रख सकते हो, तो राहुल गांधी जिस दिन भारत से बाहर जाने के लिए हवाई जहाज में चढ़ रहे थे उसी समय आप रोक लेते, आपने नहीं रोका। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि आपके पास आपकी ताकत कम है, आप खुद बैसाखी पर हो। अब इसीलिए ये जो आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसके कुछ प्रवक्ता हैं वो अंट शंट बकना शुरू किए हैं सोशल मीडिया पे, इसका मतलब ही है कि ये खिसियानी बिल्ली हैं, ये खंबा नोच रहे हैं, इनके अंगूर इनको हाथ में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अंगूर खटने हैं बोल रहे हैं। सीधी सीधी बात है, भाजपा जब कोई भी एक बहुत कठिन चीज लोगों के सामने परोसती है, जिस तरह से भाजपा ने जब नोटबंदी लाई थी तो उसने यही तर्क दिया ना कि आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो आप चिंता किस लिए कर रहे हैं, आप अगर बेकसूर हैं, आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो आप अपना नोट बैंक में जाके बदलवा लीजिए। तो अगर राहुल गांधी बर्लिन में जाके कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो कि भाजपा के ऊपर किसी तरह का आरोप है, तो उसके जवाब में भारत के प्रधान जी दुनिया भर के मीडिया के लोगों को अपने लोक कल्याण मार्ग में बुला के एक सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उसमें साबित कर दें कि केचुआ हमारा जो लोग क्या कहते हैं चुनाव आयोग है वो बिल्कुल निर्दोष है, चुनाव आयोग हमारा चुनाव आयोग दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आयोग है। भारत के प्रधान जी को एक इंटरव्यू करने में कौन रोक रहा है, पूरे दुनिया के मीडिया को बुला लें, 1 घंटे के अंदर सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि पिछले 11 साल में तो उन्होंने किया नहीं है, पहली बार करने का एक बहुत अच्छा मौका है उनको। ये राहुल गांधी के मुंह पर एक शानदार जबरदस्त तमाचा वो मार सकते हैं। राहुल गांधी ने जो जो झूठ बर्लिन में बोला उसको लोक कल्याण मार्ग में झूठ करके साबित कर दे, दुनिया के मीडिया के सामने आके एक इंटरव्यू देने, वो नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है और बीजेपी को भी ये बात पता है, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी को पता नहीं है, बीजेपी को पता है, वो खुद बैसाखी पर है। राजनीतिक रूप से अगर वो कुछ भी इस तरह का काम करने जाएगी तो पहले से वो आज इस देश में 2024 के लोकसभा चुनाव ने ये बता दिया कि भाजपा अब भारत में लोकप्रिय नहीं रही। 140 करोड़ लोगों के इस देश में 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते हैं। तो भाजपा जैसे ही समझ गई कि अब वो लोकप्रिय नहीं है तो उसके पास अब एक ही चारा बचा है, ये इनके प्रकार सत्ता पर बने रहना, चाहे कभी चुनाव में धांधली करने की कोशिश करना, चाहे लोगों को बदनाम करने की कोशिश करना, लोगों को कैरिकेचर बनाना, सोशल मीडिया पर डोमिनेट करने की कोशिश करना। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है ना, क्योंकि उनके पास वो जो जस्टिफिकेशन है, उनको पता है कि वो जिस देश में लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए वो कोई भी ऐसी नीति लाने से पहले जिसके कारण उनको समस्या आए, उनको या विपक्ष मजबूत हो, मेरे ख्याल से वो इस तरह का कोई काम भाजपा अभी नहीं करेगी जिसके कारण उनकी खुद की फजीयत बढ़ेगी। उसका सीधा सीधा प्रमाण भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह 60वीं बार उन्होंने बोल दिया, 59वीं बार बोल दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। अभी तक 60 बार आप बोल दिए, आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो भारत के प्रधान जी उस चीज को मना क्यों नहीं कर रहे थे? आप ट्रंप साहब से तो टक्कर ले नहीं सकते, तो जो ट्रंप साहब से टक्कर नहीं ले सकता, जो भारत की संप्रभुता के ऊपर 60 बार सवाल कर चुका है, जो भाजपा की खुद की नीति है, भाजपा का खुद का नारा है अखंड भारत हमारा है, ये तो भाजपा का नारा था कि अखंड भारत हमारा है। और अगर 10 मई को भारत की सेना ने यह साबित कर दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर भी उसके कब्जे में था और क्या कहते हैं बलूचिस्तान पर भी तिरंगा फहरा रहा था, भारत के प्रधान जी कह रहे थे कि पाकिस्तान घुटनों पर है, तो सब कुछ जब आपके हाथ में था तो आपने ट्रंप के कहने पर छोड़ क्यों दिया? तो मेरे ख्याल से भाजपा को पता है, भाजपा एक पाखंड में जी रही है, भाजपा को भी ये पता है, भाजपा के समर्थकों को भी ये पता है कि वो जो कहती जितने अपने आप को बड़ा है उतना वो बड़ा है नहीं, लेकिन अब कहते रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो कहेगी भी नहीं तो कर तो कुछ पा नहीं रही है, तो कम से कम गुब्बारे में हवा तो भर के रखे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये भाजपा का एक गुब्बारा है, करने में उनको काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि करेगी तो बहुत जल्दी उसके हाथ से लोकप्रियता चली जाएगी, इसीलिए वो कोशिश करती रहेगी कि इस तरह से जो विपक्ष के लोग हैं उनको बदनाम करते रहें, उनको कोई कठिनाई में डालने का काम नहीं करेगी, क्योंकि करेगी तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं मीनू जी से अंतिम कमेंट लूंगी कि राहुल गांधी को क्या जेल भेजेंगे या फिर इनके पास हिम्मत नहीं है? क्या राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करेंगे या फिर राहुल गांधी की सांसदी फिर से छीनने की कोशिश होगी? देखिए, इन्होंने जो आपने बोला ये सारे अटेम्प्ट्स ये लोग कर चुके हैं। पहले सांसदी छीनने का भी कर चुके हैं, उसके बाद आपने नेशनल हेराल्ड के जरिए तो आप ये ईडी के केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ईडी का में फंसा हुआ व्यक्ति वो कि एक बार जेल गया तो पता नहीं कब छूटेगा।
इन्होंने तो वो तैयारियां कर ली थी, लेकिन क्योंकि इनके केस पे बहुत बड़े लैक्यूना थे, तो इसलिए वो लोग कर नहीं पाए, और जो लैक्यूना थे वो सामने आ गए, जो कोर्ट ने अभी राउज एवेन्यू कोर्ट पे वहां से उन्होंने कहा कॉग्निजेंस ही नहीं लिया जा सकता इस केस में, तो कि आपकी एफआईआर ही नहीं है। तो ये सारी चीजें इन्होंने करके देख ली हैं। एक्चुअली तो क्या होता है कि बेबसी यही है कि जब आपका और कोई बस नहीं चलता नीलू जी, तो सबसे पहला आता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाते हैं लोग। वो चीज ये लोग करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, कभी कुछ करेंगे राहुल के खिलाफ, सोनिया के खिलाफ, प्रियंका के खिलाफ, जो इनको मतलब गांधी परिवार के खिलाफ जो बोलना है, तो उसमें और राहुल गांधी इनका प्राइम टारगेट रहते हैं, इनके रडार पे रहते हैं और टारगेट हैं। तो ये करने के लिए तो देखिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं और अपराधी मानसिकता के लोग हैं। मैं आई एम सॉरी टू से, अपराधी मानसिकता के लोग हैं, तो और वो पॉलिटिक्स में है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन उधर से क्या है, जो राहुल गांधी वो डरते नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी नेता थे उनको एक घुड़की दी इन्होंने भ्रष्टाचार को लेके, ईडी की, आईटी की या सीबीआई की, और वो चुपचाप से दुम दबा के बीजेपी में चले गए। मतलब गिनती बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं की जो चुपचाप ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से बीजेपी में चले गए। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इनकी आलोचना भी करता है, जम के इनके ऊपर हमला करता है, वैचारिक हमले, और ये कुछ कर नहीं पाते, और करने की जो सोचते हैं उससे वो डरता नहीं। वो कहते हैं, आपने उनके कई इंटरव्यू वो देखे होंगे पब्लिक रैलीज में, कि डाल दो मुझे जेल में, मैं डरता नहीं हूँ, डाल दो मुझे जेल में। तो वो उससे भी नहीं डरते हैं कि करे तो इसके साथ करे क्या, जबान पे लगाम लगा नहीं सकते, जबान पे लगाम लगाए। तो ये जो मोदी जी जो है ना, एक्चुअली तो राहुल गांधी ने इनकी नब्ज पकड़ ली है। ये अपनी इंटरनेशनल जो डिफेमेशन होता है, बदनामी होती है, उससे डरते हैं खाली ये, बाकी किसी चीज से मोदी जी डरते नहीं है। हिंदुस्तान में तो कुछ भी हो जाए किसी से नहीं डरते, या शर्म नहीं है कोई किसी तरह को। तो मीनू जी, क्या मोदी जी को पिन डाउन करने का, या उनकी जो टिरनी ऑफ पावर है उसको एक तरीके से सब्जुगेट करने का, या उसको कंट्रोल में लाने का यही तरीका है कि भाई अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि चीजें हाथ से इतनी ज्यादा बाहर निकल गई हैं अपने विदेश में, कि अब इंटरनेशनली जाकर लोगों को बताना पड़ेगा। जब यहाँ के संस्थान मर चुके हैं, कोर्ट्स मर चुके हैं, कोई संस्थान काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप चारा यही बचा है कि इंटरनेशनली अब जाएं और लोगों के बीच में बात करें? देखिए, इंटरनेशनली जो संस्थाएं हैं जो 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 डेमोक्रेसी की वॉच करती हैं या रिलीजियस फ्रीडम की वॉच करती हैं वर्ल्ड वाइड, उनके इंडेक्स में इंडिया कहाँ आता है? वहां बहुत नीचे आपका नंबर आता है। और जब वो रिपोर्ट्स उनकी आती हैं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम का बिल्कुल कर्टेल कर दिया गया है, और या फिर डेमोक्रेसी जो है वह खतरे में है, तो आप बिलबिला के पढ़ते हैं और आप उन्हीं संस्थाओं को गालियां देने लगते हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपके बारे में कोई आपकी विश्वसनीयता नहीं है। और अभी हाल ही में हुआ है, आईएमएफ ने आपके जो जीडीपी के आंकड़े हैं, आपके जो भेजते हैं आप, उनको डिस्कार्ड कर दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है कि सही नहीं है ये आंकड़े। तो इसमें आपकी कहाँ और आंकड़े छुपाएगा कौन, या उनको डिस्टॉर्ट करके कौन पेश करेगा? कि जिसके पास अंदर कुछ चोर है, सच्चाई बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए आंकड़ों को फजिंग करके और पेश कर दिया, और वो भी इंटरनेशनल एक इतनी बड़ी संस्था को भेज दिया। तो आपका तो ऑलरेडी आपका तो पहले ही विश्वास की कमी है, आप डिस्क्रेडिट हुए हैं। आप चाहे लोकतंत्र के उस पे हो, और चाहे आप आर्थिक नीतियों के, और आप इवन आंकड़ों के, मतलब कि इंडिया में तो आंकड़े सही मिल ही नहीं सकते। अब उनको तो चलिए, उन्होंने तो पता लगा लिया इकोनॉमी के, बाकी के आंकड़े आप देख ही रहे हैं किस तरीके का, कि हाईवे बने हैं तो 4 लेन हाईवे को 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर गिना जाएगा। इनका तो ये आंकड़े बनाने का तरीका, तो जो कि पहली सरकारों ने कभी ऐसा किया नहीं, जो ईमानदारी से जो स्थिति थी वो सामने रख दिया। और अभी जो हो रहा है आपके देश में, जो लगातार चल रही है, मतलब कोई लिंचिंग है वो थमने का नाम ले देती है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ आप बुलडोजिंग चल रही है आपकी वो। और अभी आप और तो छोड़ दीजिए, जो एसआईआर हो रही है, उसमें मकसद क्या है? मुस्लिम वोटों को काटना ही तो है वहां पे मकसद, क्योंकि मुसलमान जो है जिस तरीके से वो अंडर थ्रेट है उनकी एग्जिस्टेंस, तो वो बीजेपी के अगेंस्ट है। तो आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाए, और उसी के लिए एसआईआर हो रही है। तो आपने उनको बाहर कर रखा है, और उसके बदले में अगर आप ये बातें, ये जो अगर इंटरनेशनल, क्या मुझे बताइए कि कौन सी कंट्री की एम्बेसी यहाँ नहीं है, और कौन से इंटरनेशनल मीडिया का यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स नहीं है? आप मुझे ये बताइए। सबके कॉरेस्पॉन्डेंट्स है।
आपके जो बीबीसी की रिपोर्ट्स आपको जो अनकंफर्टेबल बनाती हैं, वो यही है, वो लोग यहाँ पे बड़े बड़े सबके कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, वो सब देखते हैं, देख रहे हैं, और वो अपने बैक होम वो रिपोर्ट करते हैं। तो आप उनको उन पे रोक लगाइए ना। आप राहुल गांधी पे क्या रोक लगा रहे हैं? और राहुल गांधी पे आप क्योंकि चाह के भी रोक नहीं लगा सकते। देखिए, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और जिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम हैं, वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शेडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। तो इन अ वे ही इज अ शेडो प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप शेडो प्राइम मिनिस्टर की ही जबान पे लगाम लगाएंगे, उसको मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, या उसका पासपोर्ट आप जब्त कर लेंगे, तो आपकी दुनिया में क्या थू थू होगी। मोदी जी केवल एक चीज से डरते हैं नीलू जी, अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती से। आप ये देखेंगे, नुपुर शर्मा का किस्सा हुआ था, मोदी जी ये किसी से डरते हैं? कितनी बकवास चलती रहती है। वर्ल्ड कम्युनिटी से रिएक्शन आया और आज तक पता नहीं है नुपुर शर्मा का। नहीं तो डरते हैं मोदी जी, इस्तीफे होते हैं इनके यहाँ। बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन क्या है कि उससे डरे इतना भी नहीं कि उनकी बदजबानी बंद हो गई है, वो तो चल रही है लगातार। लेकिन आपको जो आप तो ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, और अगर इतने ही ज्यादा आप क्रेडिट, आप इतने ज्यादा आपका नाम है और इतना आपका विश्वास है, तो आप जहां ट्रंप मौजूद होते हैं, जिन्हें इंटरनेशनल समिट्स में या कॉन्फ्रेंसेस में, मोदी जी वहां जाते क्यों नहीं है? क्यों डरते हैं ट्रंप का सामना करने से? आप इतनी साफ, आपकी जो शीशे की तरह अगर आप चमक रही है, आपकी जो इमेज है, तो आप ट्रंप से क्यों डर रहे हैं? आप क्यों नहीं जाते आसियान की मीटिंग में? आप ऐसी मीटिंग्स में क्यों नहीं जाते जहां पे कि ट्रंप मौजूद है? आप शेख सरमल में क्यों नहीं गए थे? क्यों ट्रंप से घबराहट? किस चीज की घबराहट है भाई आपको? इट मींस आपके अंदर बहुत सारा एक चोर है, क्योंकि ट्रंप जो है वो बदतमीज आदमी है। वो आपसे कहलवाएगा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को मैंने रुकवाया था, इसलिए आपको डर लगता है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि ट्रंप ये कह भी दे आप उसके कि आप मैंने रुकवाया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि देखते हैं क्या बोलेगा, मैं दूंगा उसको जवाब कि गिव मी द प्रूफ, गिव मी द एविडेंस। वो उनकी हिम्मत नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो बस घर के शेर हैं, घर के लोगों को होते ना, गली में भौंकते रहते हैं। तो वो लोग हैं कि घर में तो हर कोई शेर होता है, बाहर बन के दिखाइए शेर। वो मोदी जी डरते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी से के ऊपर ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं वो ड्रास्टिक, लेकिन इंटरनली जो वो कर सकते हैं, वो हर चीज करेंगे जो वो कर पाएंगे। जी चलिए, इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।